Clutch Auto Limited was registered with an authorized share capital of rupees 5 lakhs divided into shares of 10 each. मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी जो कंपनी है ये रजिस्टर्ड है ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ. Now authorized capital is rupees 5 lakhs. Many students make a mistake. They multiply 5 lakhs into with 10. They arrive to an answer that is 50 lakhs. But that's wrong. They have already given you rupees 5 lakhs. So note this point. This is rupees 5 lakhs divided into shares of 10 each. Means there would be 50,000 shares of 10 each. And therefore my answer is rupees 5 lakhs in all, in total, out of which 40,000 equity shares had been issued and fully paid up. See, there were 50,000 shares, authorized capital. In the bucket, there is an authorized capital of 50,000 shares. You have picked 40,000 out of that 50,000 and issued it to the market. So that becomes my another bucket, which is known as issued capital. There is one bucket which is authorized, from which I will pick and issue it to the market. That will be known as what to say, क्या कहते हैं उससे, issued capital. ठीक है, समझ आ रहा है इतना? तो हमारे पास जो issued capital होगी वो कितनी होगी, 40,000 equity shares of 10 each, which comes to 4 lakhs rupees. And if you notice in the question, the last point in the trial balance is equity share capital. Look at my cursor, you will be able to understand then. Equity share capital rupees 10 each, and the credit side shows 4 lakh rupees. And this is what I was saying. This is just what I said. 40,000 equity shares of 10 each becomes my 4 lakhs equity share capital, which is issued. Okay, and whatever we have issued, it is from authorized part. So authorized, we just have to show it. Okay, authorized is never taken into tally figures. Okay, otherwise your balance sheet will never be tallied. What you have to do is show the authorized capital the way we have done in the previous sums. I think there was one adjustment related to authorized and issued, so we have done that point as well. This is nothing new to you all. Okay, so we have a trial balance given here as on 31st March 2014. There are many such items. Go through, have a look at all the items. I'm giving you 1 minute to go through all the items. See, there is opening stock, purchase, sales, returns, and many expenses, bank loan, interest on bank loan. So there are few things which are given here. Freehold premises and plant and machinery, furniture, loose tools. These are my fixed assets. And then we have debtors, creditors, cash in hand, bank, advance payment of tax we have, other incomes. I hope you remember what is other income and where it will be allocated to. Yes, We have ma'am. equity share capital as well. And this equity share capital, which is given in the trial balance, is known as issued equity share capital. Always remember. No authorized capital will be given in the trial balance. It will be out of the trial balance, either in the adjustment or at the top of the question, just like this sum has. Okay, now you are required to prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2014 and the balance sheet as at that date, taking into consideration the following adjustments. See, there are, I think, 5 adjustments. Yes. On 31st March 2014, that means this date is marked as closing date. Am I right? This date is marked as closing date. Yes, Why yes, am I ma'am. confidently saying that? Because I ऊपर know, लिखा 31st हाँ जी, 31st मार्च 2000. बिल्कुल जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो 31st मार्च मतलब क्लोजिंग के लिए बनाते हैं. And here they are disclosing a trial balance extracted on 31st March. Therefore, it has to be a closing balance. Also, there is one point through which I can be assured that I am right is this opening stock. 1st April 2013. So it has to be opening.
Therefore, the closing will be 31st March 2014 only, if the opening is 1st April 2013. Okay. On 31st March 2014, outstanding manufacturing wages and outstanding office salaries stood at rupees 1,800 and 1,200 respectively. Whenever there is a word respectively, it means first amount belongs to the first, I mean, whatever is denoted here in words, and then second is belonging to second. ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ये हमारा पहला क्या बोलते हैं आइटम है, और इस पहले आइटम का पहला अमाउंट है 1800, और जो दूसरा अमाउंट है 1200 वो दूसरे वाले आइटम से रिलेटेड है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज. इज इट क्लियर? Yes, अभी ma'am. देखो आपके पास है ना फिजिकल बुक नहीं है, otherwise what like what we would have been doing, we were supposed to write tick mark. हम लोग कैसे करते थे पहले, मतलब जो एडजस्टमेंट है ऊपर जाके वी यूज टू सर्च इट एंड राइट टिक मार्क करके नंबर 1, फिर राइट टिक मार्क करके नंबर 2, है ना, याद आया कैसे करते थे? But now because Yes, you ma'am. have a soft copy of this book, you will not be able to write it. So what you will be doing is you will have to remember. No other option. आई थिंक हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेंगे तो दिमाग में बैठ भी जाएगा कि अच्छा इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, है ना. तो आप बिल्कुल इस पर ध्यान देना. अगर एडजस्टमेंट देखो पॉइंट आई, समझो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आया, आपने सीधा उसकी पोस्टिंग कर दी, फिर बाद में देखा कि ओ हो आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वर देयर एंड आई फॉरगॉट. सो लाइक तब है ना थोड़ी वो बोलते हैं ना वो मैस हो जाएगा सब में, फिर कट करना पड़ेगा, फिर आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करके कहीं लिखना पड़ेगा, तो वो चीज़ ना करो तो बेटर है, और ध्यान दो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है. ओके, आगे दिया हुआ है द सेम एडजस्टमेंट हैज वन मोर सेंटेंस. On the same date, stock was valued at, same date means 31st March 2014. Stock was valued at 1,60,000. That means this is closing stock, and loose tools at rupees 10,000. Very important. Closing date पे दिया हुआ है loose tools at rupees 10,000. This means loose tools are given a closing value. If you look at this trial balance, there is one item which is given loose tools. I hope you know this is tangible fixed assets. Okay, if you don't know, I would tell you this is tangible fixed asset. Okay, loose tools tangible fixed assets होते हैं. This is of 12,000 rupees in the trial balance. But now if you look at point number 1, the adjustment number 1, they are saying on 31st March loose tools stood at rupees 10,000, which means there is 2,000 ka depreciation provided during the year. Yeah, depreciation, but by what amount the depreciation has been charged? 2000. Yes, very 2000. important, because students misunderstand this point. They don't understand properly. What they do is they take the depreciation as 10,000 and they write the written down value as 2,000. I mean, how do you get this point? I don't know. But it is to be understood 10,000 will not be a depreciation for 1 year, no. Out of 12,000, 10,000 will be depreciation. Such a huge amount of depreciation is not possible. Okay, maybe 10% depreciation, maybe 20. But such a huge amount, 10,000 is like 12,000 का हाफ भी ना 6,000 होता है. आपने हाफ से भी कितना ज्यादा ले लिया. 50% से भी ज्यादा डेप्रिसिएशन थोड़ी होता है in a single year. Are you understanding the concept? See, if you are, I'm giving you so much time so that you understand the concept. Copying down the sum is easy. Only just listening and writing down the sum is very easy. But then I'm trying to put you into a uh, state where you understand every concept of the sum.
ओके, ब्लू स्टूल जी क्या दिया हुआ है 10,000 का? क्लोजिंग वैल्यू मतलब रिटन डाउन वैल्यू दी हुई है। तो इन शॉर्ट 2000 का डेप्रिसिएशन मतलब हिडन एडजस्टमेंट है ना। डेप्रिसिएशन इज 2000, दैट इज हिडन, we have to understand it. Okay, so we need to write that way also. I mean, we We have to can show. think, yeah, ma'am, we can think like this also, not that asset or value is decreasing, then what the value is decreasing, that is depreciation. Very good. Yes, the value has decreased. Correct. From 12,000, it has come down to 2,000. Sorry, 10,000. From 12, it has come down to 10. Therefore, always remember, depreciation का definition क्या होता है? The definition of depreciation is reduction in the value of fixed assets. So it is reducing, the Yes. value is reducing. By what amount it is reducing? It is reducing by 2000. Therefore, it has to be depreciation. Provide the interest on bank loan for 6 months. Very important. Very important. Provide interest on bank loan for 6 months. Now, already there is one item which is related to in the trial balance. सॉरी, देखो एक आइटम दिया हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा है 12% बैंक लोन के बिल्कुल नीचे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3000 का दिख रहा है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। देखो मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ ये आइटम, जैसे हम जब ये आइटम पे आएंगे ना तब हमको याद आ जाएगा कि अच्छा इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी। सो प्लीज प्लीज बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, depreciation on plant and machinery is to be provided at 15%, while on the office furniture is to be 10%. Okay, so we have here plant and machinery. If you look at my cursor, plant and machinery, and we have furniture. These two things are to be treated as with adjustments. Okay, one has 15 and another has 10% ka depreciation rate. Nothing is disclosed about the nature of the depreciation. Therefore, we will understand, we will assume rather that it is straight line method of depreciation because they are disclosing nothing about the nature of the depreciation. Is it clear? The next one is write off one third of the balance of preliminary expenses. Where is preliminary? This one. Director's remuneration के बिल्कुल नीचे. I hope you can see my screen clearly. Preliminary expenses 6,000 is given and we need to write it off. Not the whole amount, but only one third part of that balance. One third part of the balance has to be written off. That means out of 6,000, one third has to be written off, other has to be kept it as it is in the balance sheet because preliminary expenses are the part of the balance sheet. Okay, I hope you know preliminary expenses, miscellaneous expenditure. Priya ma'am has already taught you uh, about miscellaneous expenditures that at that time they were used to be deducted from the shareholder funds. Remember? Okay. But now that is not the same case. We will follow our own format. Okay. The last adjustment, make a provision of income tax at 35% of book profits. So whatever your profit will be, we will calculate income tax at the rate of 35%. Okay. Yes. I think we are good to go. Shall we start with the sum? I think हम लोगों ने क्वेश्चन तो अच्छे से रीड कर लिया बिल्कुल डिटेल में, और जो भी पॉइंट्स हैं वो हमने ऊपर भी देख लिए हैं किसके ऊपर एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप प्लीज भूलना मत, मैं भूल जाऊं लेकिन आप मत भूलना, ठीक है? मुझे भूलने की आदत है। ओके, बट यू डोंट फॉरगेट, नहीं तो सम टैली नहीं होगा हमारा। ओके, प्लीज रिमाइंड मी इफ आई एम फॉरगेटिंग एनी point which is related with the adjustment. Yes. Shall we start? I hope you have made the format because I've Yes, ma'am. already told you to make the format, and yes, I've given you one sum as an homework. See, if you have any doubt, you can clear it with me right away.
है कुछ डाउट तो अभी क्लियर कर लो उस होमवर्क का, नहीं तो हम ये पहले सम करें फिर आप क्लियर करें। इज दैट ओके? मैम पहले सम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, चलो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1 पे। आपने फॉर्मेट्स पीएनएल का भी बनाया होगा, अब बैलेंस शीट भी बनाया होगा। Yes, ma'am. वेरी गुड। सो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1, share capital. Nothing, nothing has to be written rupees in lakhs, rupees in thousands. Nothing has to be written because they are not giving that form of the amounts. They have given zeros. So we also need to follow the same way. Okay, anyways, working note number 1, share capital, underline it. Now write down authorized share capital. Authorized equity share capital. Now come to the extreme right hand side. एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, बिल्कुल राइट हैंड साइड के बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर में आ जाइए। लिखिए वहां पे 5 lakhs। 5 lakhs ये अमाउंट है, ठीक है, रुपीज 5 lakhs है ये। और ऑथोराइज्ड कैपिटल जहाँ लिखा है ना अपने लेफ्ट हैंड साइड में, वहां नीचे ब्रैकेट में लिखिए 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ब्रैकेट क्लोज। देखो ये दिया हुआ है तो हम लिख रहे हैं। अगर उन्होंने बोला ऑथराइज कैपिटल इज 5 lakhs तो हम भी लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल 5 lakhs। We are elaborating because they are actually giving that information. Okay, so 50,000 equity shares of 10 each, bracket close. Come to the next line. Write down issued equity share capital. ये आप सिंपली लिखोगे issued capital तो भी चलेगा। Issued capital. Underline that. Come to the next line. Write down 40,000 equity shares of 10 each. 40,000 equity shares of 10 each. What should be the amount? 4 lakh. 4 How lakh. to right away in the right corner, extreme corner, 4 lakhs. But yes, I forgot to tell you that where you have written 5 lakhs, you have to draw, Crossing line. yes, 2 crossing lines below the 5 lakhs rupees. Yes. Right below the 5 lakhs rupees, you have to draw 2 crossing lines. Below it, huh? Not above, only Yes, below. ma'am. किया मतलब इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? Entry will be not there यस in balance यस, sheet. 5 लाख सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत हैं, हमने उसको हाँ। कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करना है। ओके, बिकॉज ये कंपनी के पास होते तो हैं, पर जब तक इशू नहीं होते तब तक ये कैपिटल यूज में नहीं होती है। तो यूज में नहीं है तो हम टैली फिगर में कैसे लेंगे उसको? ये सिर्फ देखने के लिए 5 लाख रुपए, उसमें से कितने हम यूज कर रहे हैं? 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो 4 lakhs को हम लेके आएंगे। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी शेयर कैपिटल पे, कोई कॉल्स इन एरियर्स, कोई कॉल्स इन एडवांस, कुछ भी नहीं था। कोई फॉर फीचर, कुछ शेयर्स को कैंसिल कर दिया, कुछ भी नहीं था। प्लेन दिया हुआ है 4 lakhs, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो क्या करूं अब मैं? सीधा आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपने लिखा होगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में लिखा होगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के इनर कॉलम में लिखेंगे 4 lakhs। Please note, Working note please 1. take this, yes, please take this note। आपने ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 + 4 9 lakhs लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे 5 lakhs लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे 5 - 4 1 lakh लिखते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। Make a note somewhere that 5 lakhs is only to be shown. It has not to be considered while getting a tally figure.
So what has to be considered? Only 4 lakhs rupees, which is an issued capital. Okay. Yes, you need to write working note number 1. So don't write WN1. You just have to write 1 because already the column is working note. So don't keep writing WN. You don't have that much time in question paper right while solving the paper. You don't have that much time also to write WN. Can you imagine कितना कम टाइम मिलता है आपको पेपर में? FRA का पेपर सबसे लेंदी होता है. See, I'm not making it lengthy. It is naturally lengthy. Look at the question and look at the size of the solutions that you are doing today. So it's not my fault. I'm not making it lengthy deliberately. It is naturally. Okay? Yes, ma'am. हाँ जी, आवाज आ रही है दिव्या? सबको आवाज आ रही है क्लियर? Okay. Yes, ma'am. Okay. So, share capital 4 lakhs rupees, inner column. Is that done? आगे बढ़े? Done, Yes, ma'am. ma'am. Done. Okay. Yes. Stock on 1st April. Now come down to the trial balance. Stock on 1st April 2013. This is opening stock. Okay. We have closing stock also. So we again have to go to a new working note. Go Working to note the number working 2. note number 2. Write down. ये कहाँ जाता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? कोई बताएगा मुझे? Inventory में. हाँ, चेंज इन द इन्वेंट्रीज. Change. अच्छा ये पहला एक्सपेंस क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. उधर क्यों नहीं जाएगा? स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी तो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. तो वहां भी तो उस दिन हमने वहां डाला था ओपनिंग एंड क्लोजिंग को परचेज के साथ, क्योंकि उस दिन दिया हुआ था स्टॉक ऑफ मटेरियल. अब दिया है मटेरियल, रॉ मटेरियल दिया है, उसने डिस्क्लोज किया है? हाँ, नहीं नहीं दिया मैम. है, मतलब नहीं. फिनिश गुड समझेंगे. यस, नहीं दिया है मतलब फिनिश गुड समझा जाएगा. पूरा सम चेक कर लो. एक ही तरीके का स्टॉक है कि 3-4 टाइप से स्टॉक्स के? एक ही है. एक ही है मतलब वो फिनिश गुड्स होगा ना, क्योंकि फिनिश गुड्स के हाँ. बिना तो चलेगा ही नहीं, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे ट्रेडर हो. ठीक है, इतना समझा तो आगे बढ़ू मैं. हाँ मैम. समझा मैम. ठीक है, चलो अब समझा लिखेंगे मैम. वर्किंग नोट नंबर 2 में चेंज इन द इन्वेंट्रीज. हेडिंग लिखो चेंज इन द इन्वेंट्रीज, अंडरलाइन करो. उसके नीचे लिखो ओपनिंग स्टॉक 1,86,000. अच्छा, अब आप बोलो कि ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिखना है? नहीं, ऐड परचेज. मटेरियल का परचेज थोड़ी कर रहे हो आप. ये कुछ नहीं बोला है ना, मतलब कौन सा परचेज कर रहे हो? फिनिश गुड्स. तो ये तो वहां पे दिखाएंगे ना, परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज. एक और एक्सपेंस का हेडिंग है ना, परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज, है कि नहीं है? Yes, ma'am. देखो, अगर ये परचेज ऑफ मटेरियल होता ना, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, अगर ये परचेज ऑफ मटेरियल होता ना, तो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो पहला पहला आइटम है एक्सपेंसेस का, वहां पर लिखते ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एट परचेज ऑफ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? दिस इज जस्ट परचेजेस. ठीक है, तो ये फिनिश गुड्स का होगा. ठीक है, तो फिनिश गुड्स के लिए हमारे पास दूसरा हेडिंग है परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज, तो ये वहां डालेंगे. अब मुझे क्या करना है? चेंज इन इन्वेंट्रीज में क्या करना है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, दैट्स इट. सो व्हाट इज दोनों माय का ओपनिंग? डिफरेंस. 1,86,000. yes. And what is your closing? Closing is adjustment number 1. 1 lakh 1,60,000. 1,60,000. very good Halima, very nice. On the same date, देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है on the same date stock was valued at 1,60,000. So out of 1,86,000, 1,60,000 will be deducted in the form of closing stock. So what is the You'll get leftover amount? 26. 26. 26,000 रुपए, 26,000 rupees. एंड आई थिंक इट इज इन पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. तो हमने पॉजिटिव में ही लेकर जाना है उसको. नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे. ठीक है, समझ में आया किस कैसे करना है? 26,000 को लेके आइए
प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान से सुनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, एक्सपेंसेस की हेडिंग के नीचे चेंज इन इन्वेंट्रीज कहीं पे लिखा होगा आपने, वहां के इनर कॉलम में लिखिए 26,000. Okay, now purchase and sales. Let us go to next item. Purchase and sales. Purchase 7,18,000. But before writing down the purchase, you have to check whether any related item or the adjustment is given on the purchase. Example, returns on purchases. है ना, दिया है returns मैम on नीचे। purchases is, yes, very good. No adjustment is given on purchases, but a related item in the trial balance is given related to purchase. ये related item है, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाना है कि सीधा लिखना है, जैसे आप बोलो, सीधा भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. परचेज में से रिटर्न्स को लेस करते हैं, वेरी गुड. आई एम गेटिंग आंसर्स इन द चैट बॉक्स, वेरी नाइस. लेस रिटर्न्स करेंगे, ये तो बराबर बोला आपने, बट आई थिंक वर्किंग नोट बना ले नहीं तो. मैम चलो, बना लेते हैं. हाँ जी बिल्कुल बना लेते हैं, बिकॉज पहला सम ऐसा है जिसमें रिटर्न्स है, तो आप बाद में समझोगे नहीं कि ये हमने 10,000 लेस क्यों किया, मतलब हाँ. कैसे किया. ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 बना लो. लिखो, परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज. परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज, अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो परचेजेस 7,18,000, 718,000. यस निधि, यू आर वेरी मच राइट. डेबिट में सेल्स रिटर्न्स आएगा, मतलब जो डेबिट होता है ना वो सेल्स रिटर्न्स होता है, और जो क्रेडिट यस होता है ना मैम. वो परचेज रिटर्न्स होता है. वेरी गुड बेटा. यस। जो डेबिट होता है वो सेल्स रिटर्न्स होता है, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वापस तो वही आएगा ना जब मैंने बेचा होगा. जब मैं बेचूंगी तो वापस वही चीज आएगी ना, डेबिट व्हाट कम्स इन करके. और क्रेडिट में 10,000 रुपए क्रेडिट मतलब गोज आउट वाला क्रेडिट होता है, तो गोज आउट तो तब होगा ना जब मैंने खरीदा होगा, तब तो मैं वापस दूंगी, आपको जाएगा मेरे हाथ से. देखो लॉजिक है, पहले मैंने खरीदा, गुड्स अंदर आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर मैंने रिटर्न कर दिए 10,000 के गुड्स, तो क्रेडिट हो जाएगा ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो अंडरस्टूड है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो तभी होगा जब मैंने परचेज किया होगा और अब मैं रिटर्न कर रही हूँ, तो इट हैज टू बी अंडरस्टूड. ओके, रिटर्न्स क्रेडिट में जो होता है ना वो परचेज रिटर्न्स होता है. वेरी गुड निधि. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. परचेज है आपका 7,18,000, उसके नीचे लिखेंगे लेस रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स 10,000 ब्रैकेट, 10,000 ब्रैकेट. So what is my final answer? 7 7,08,000. like 8,000। 7,08,000. Now come to the main format of profit and loss account. Come to the main format of P&L. In that there is an heading expenses, उसके नीचे आपके पास purchase of inventories करके heading है, उसके इनर कॉलम में लिखेंगे 7,08,000. Next, sales. Let us go in sequence. Sales. Now again we have returns. So let's make another working note. Yes, while you are writing the items in the format, you have to note down the working note number as well. Don't forget that. Like example, purchase का working note number क्या था? 3. 3। 3 3. आपको, तो आप जब इनर कॉलम में लिख रहे हो 7,08,000, उसके पहले वाले कॉलम में आपके पास 3 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो नोट नंबर का ही तो कॉलम है. चलो सेल्स में आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 4 सेल्स. सेल्स का हेडिंग क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. हेडिंग लिखो पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसको अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे सेल्स. सेल्स का अमाउंट है 11,69,000, 11,69,000. उसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स 12,000. यस शिवानी, वेरी गुड. लेस करेंगे 12,000.
तो 11,69,000 में से 12,000 गया तो कितना बचेगा आपको? What is the 11,57,000. 11,57,000. 1157? Divya has given me in the chat box. Very good. 11 lakh. 57,000. 57,000. हाँ ठीक है, 11,57,000 is the correct answer. Yes, very good. Okay. So हम ये कहाँ लिखेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के इनर कॉलम में. P&L में जाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाओ, उसके इनर कॉलम में लिखो 1157. ठीक है, आगे बढ़े. मतलब अभी हमारे 4 आइटम्स हो गए, परचेज, सेल्स, रिटर्न्स दोनों के 4 आइटम्स हो गए. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पे आ जाओ. एंड आई थिंक इस पे एडजस्टमेंट था. पहला एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 1800 रुपीज. यस 1800. तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ जाता है, कोई बताएगा? Other expenses? नो नो, इतनी बार अभी मतलब 10 सम्स कर चुके हैं, स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड. Employee benefit. यस, benefit expense. हाँ, एक दूसरे का सुन के बस बोलने का है ना. पहला आंसर किसने दिया? आई कुड नॉट मेक आउट. हलीमा. Halima. हाँ ठीक है हलीमा, वेरी गुड. तूने भी गैस किया कि सही सही बोला कॉन्फिडेंटली? नहीं, वेजेस आपने बोला था ना, ये सब चीजें हाँ एम्प्लॉय वेरी बेनिफिट गुड, में आएंगी. वेरी नाइस, कीप इट अप. सो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बच्चा मैंने पहले ही बताया, वेजेस, सैलरीज, बोनस, ये सब तो एम्प्लॉय के लिए होते हैं ना. एम्प्लॉयज देखो आप ऐसे ही समझ सकते हो ना, इजी तो यही वे है. देखो वेजेस किसको देते हैं हम? लेबरर्स को. लेबर्स भी तो मेरे एम्प्लॉयज हैं. सी यहाँ पे एम्प्लॉयज का मतलब है समबडी हु इज वर्किंग फॉर मी. समझ आए, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय. अब आप एम्प्लॉय को लिटरल मीनिंग मत लो. एम्प्लॉय, लेबर कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉय, डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी एन एम्प्लॉय. उसकी पोस्ट है डायरेक्टर की. आई बात समझ. एम्प्लॉय इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय, अकाउंटेंट इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर मी. ठीक है, चलो आगे बढ़े. तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ जाएगा बोलो? एम्प्लॉय बेनिफिट. तो अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बिकॉज एडजस्टमेंट है. तो बनाइए वर्किंग नोट नंबर 5. देखो जितना बड़ा सम, जितने ज्यादा एडजस्टमेंट, उतने ज्यादा वर्किंग नोट्स. बनाइए वर्किंग नोट नंबर 5. लिखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ईबी ई. साथ साथ लिखिए. चलो आगे बढ़े. लिखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस. रुक जाओ, बड़े ध्यान से सुनो. I know you have not made inner and outer column. I know that. But assume, ऐसा assume करो कि आपने inner and outer बनाया है. थोड़ा प्रेजेंटेटिव वे में लिखो उसको. अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का अमाउंट ऐसे लिखो जैसे आप इनर कॉलम की तरफ लिख रहे हैं. राइट इट एज इफ यू आर राइटिंग इन द इनर कॉलम. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 1 लाख रुपीज दिख रहा है मुझे. म्यूट म्यूट प्लीज म्यूट. ओके, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 1 लाख रुपीज इनर कॉलम की तरफ अज्यूम करके लिखो. अच्छा बोलो, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? क्विक आंसर. Less. Add. हाँ शिवानी, ऐड करते हैं. Sorry, add. देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना तो लेस करते हैं क्योंकि हमने पहले ही भर दिया मतलब कैश चली गई मतलब लेस. अब तो आउटस्टैंडिंग है मतलब भरना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है जो मुझे भरना है. ठीक है, पहले से ही वेजेस कितने भरने हैं? 1 लाख. उसके साथ साथ और कितना भरना है? 1800. 1,800. तो सिर्फ 1 लाख नहीं भरना है, 1800 भी भरना है. सो इन ऑल कितना भरना है? टोटल कितना भरना है? 1,1800. 1,01,800 बनना है. तो टोटल निकालने के लिए तो प्लस ही करना पड़ेगा ना. हाँ मैम. ठीक है, हाँ. तो 1 लाख के नीचे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग 1800. मतलब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस के नीचे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग. 1 लाख के नीचे लिखेंगे 1800. और एज इफ यू आर राइटिंग इन द आउटर कॉलम 1,01,800, 101,800. ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा. यस, द करेक्ट आंसर इज निधि जो लिख रही है चैट बॉक्स में 101,800. ओके, चलो आगे बढ़े. इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? चलो ऑन द स्पॉट हम सेकेंड इफेक्ट भी दिखाएंगे.
आप मुझे बताइए अदर ये एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। वेरी गुड। पीएनएल में जाओ, रुको रुको, आउटस्टैंडिंग तो फिर दो है ना, रुको रुको, एक साथ दिखाएंगे, दो आउटस्टैंडिंग है। वर्किंग नोट नंबर 6 बनाइए, नहीं एक सेकेंड, वर्किंग नोट नंबर 5 जो आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बना के रखा है ना, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ही नहीं है जो एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएगा। इज देयर एनी अदर थिंग विच इज सैलरी। एलोकेटेड टू? यस, ऑफिस सैलरीज। देखो नीचे नीचे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नीचे 18,000 की सैलरी दी हुई है। हाँ, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नंबर 1 दे दो मैन्युफैक्चरिंग को, और और नंबर 2 दे दो ऑफिस सैलरीज को। ऑफिस मैम सैलरीज को एक नंबर और, 2 दे दो। मैम एक और डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ये हाँ और हाँ दूसरा है कुछ? हाँ हाँ, वो आगे आते हैं ना। हम पहले जो पॉइंट आए, देखो मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या है, सीधा नहीं ऑफिस नहीं, मेरे को सैलरीज। लगा कि उसमें आएगा, इसके लिए जस्ट आई वाज आस्किंग। हाँ हाँ करेक्ट, आएगा ना बेटा। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन भी क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेनिफिट बेनिफिट। में जाएगा। वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले सैलरीज है, तो सैलरीज कितना है बोलो, 18,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग कितना है, 1200। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है 1200 आउटस्टैंडिंग है, तो लिखो ऑफिस सैलरीज, वहीं पे एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं, ऑफिस सैलरीज इनर कॉलम 18,000, एड आउटस्टैंडिंग उसके नीचे 1200, 1200। so 18,000 plus 1200, 18,000 plus 19,200। 19,200, as if you're writing in the outer column. Okay, अब आ जाओ नेक्स्ट, ऑडिट फीस नहीं, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। यस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन क्या होता है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट में जाता है। तो यस। लिखो थर्ड नंबर आइटम एम्प्लॉय बेनिफिट में डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। What is the amount? What is the amount? 26,000। 26,000, वेरी गुड, 26,000। हाँ, ये इस पे सीधा कोई आउटर कॉलम है। एडजस्ट, हाँ जी बिल्कुल, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देयरफॉर assume that you have made an outer column and put it there, right in extreme corner। ठीक है, कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर में डाल दो 26,000। और कोई है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड? मुझे तो नहीं दिख रहा, नहीं है ना, जल्दी बोलो। नो मैम। नहीं है ना, ठीक है। नहीं। अब तीनों का टोटल करो, तीनों मतलब, 1,47,000। 47,000। तीनों मतलब कौन से, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ऑफिस सैलरी, डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग हाँ, सैलरी एंड डायरेक्टर गुड। वन लैख रेम्युनरेशन। 47 आया जो टोटल, रुको, 1,47,000 जो टोटल आया ना, ये वाला अमाउंट पीएनएल के एम्प्लॉय बेनिफिट के इनर कॉलम में लेके जाना। ये टोटल वाला अमाउंट पीएनएल में जाओ, देयर इज अ हेडिंग एक्सपेंसेस, उसके नीचे सब हेडिंग है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। In that, write down in the inner column 1,47,000, because this is the total of employee benefit expenses. We don't have to write just a part of employee benefit, which is wages, a part is salaries, a part is remuneration. So these are the parts. We have to write the total of all, which is 1,47,000. But now you have to think over. Wait. Again, come write down working note number 5. 1,47,000 लिखा ना, उसके पहले आपको 5 भी लिखना पड़ेगा। 5 मतलब वर्किंग नोट नंबर 5। Now come down to the working note number 5 again. See, there are two things: outstanding manufacturing wages and outstanding office salary. There are two outstanding figures that you need to add them first. Add them and let me know the amount. Add them and let me know the amount. 3,000. 1,800 plus 1,200. Please note once more, you don't have to show the total amount. The second effect has to be shown of the figures which are related to the adjustment, not to the trial balance, neither of the total.
ना हमको टोटल का सेकेंड इफेक्ट दिखाना है, ना जो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में है, नहीं, हमको किसका, दिव्या 1,21,000 बेटा किसका लिखा, पता नहीं, 1,21,000 डेफिनेटली रॉन्ग है, किसका लिखा बेटा, देखो सारे बच्चे ना यही मिस्टेक करते हैं, टोटल, देखो सेकेंड इफेक्ट किसका दिखाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और जो ऑफिस सैलरी का टोटल है ना, उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखाना है, सेकेंड इफेक्ट दिखाना है आउटस्टैंडिंग के फिगर्स का, जो एडजस्टमेंट के अंदर है। समझ में आया दिव्या? आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? यस मैम। हाँ, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 18,000, 18,000 नहीं बेटा, 18 1800। 1800 और हाँ, 1200। वेरी गुड, अभी समझ आया आपको। तो टोटल कितना होता है, दो आउटस्टैंडिंग है, दोनों को ऐड करके 3,000 बनते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है 3,000 को दिखाने के लिए, ऑलरेडी समझने वाली बात है ना, 2,000, दो ही एडजस्टमेंट है ना, सॉरी दो ही आउटस्टैंडिंग है ना, सिंपली हमने यस दोनों मैम। को ऐड कर लिया, अब दोनों को ऐड किया तो 3,000 आया, 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आप बताओ इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इतना टाइम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, अदर एक्सपेंसेस। हाय रब्बा, वो तो पीएनएल में तो, देखो एक इफेक्ट पीएनएल में जाता है, दूसरा बैलेंस शीट में जाता है, पीएनएल का हो गया, लाइबिलिटी। 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 पीएनएल में अभी अभी तो ऐड किया ना आपने, लाइबिलिटी। शिवानी सोच समझ के आंसर दे, मार खाएगी रॉन्ग आंसर देगी तो। लाइबिलिटी बोला ना मैम मैंने। हाँ तो किसने मुझे बोला कि पीएनएल में जाएगा, देखो तुम लोग है ना, ध्यान दो, ये फाइनल अकाउंट्स वही चीज है जो हम 11th 12th में सीखे हैं, और अब तुम लोग उसमें ही मिस्टेक कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मेट अलग है, इट इज नथिंग एल्स, बाकी सारे रूल सेम है, सेम, एक इफेक्ट पीएनएल में जाएगा तो दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा ना बेटा, आई बात समझ में? तो जाओ लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में कहा, नॉन करंट, करंट, करंट लाइबिलिटी, करंट में करंट। कहा, अदर करंट लाइबिलिटीज, वेरी गुड, लिखो जाओ अदर करंट लाइबिलिटीज में, रुको, और कोई अदर करंट लाइबिलिटी दिख रही है आपको, रुको, 3,000 लिखने से पहले देख लो, और भी कोई अदर करंट लाइबिलिटीज हैं, जैसे पूरा, क्या कहते हैं, पूरा ट्रायल बैलेंस भी देख लो, देखो यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस देख लो, ऐसी कोई लाइबिलिटी दिख रही है जो अदर करंट लाइबिलिटीज में जाती है, क्योंकि हमने 3,000 अगर लिख दिया तो कट करना पड़ेगा ना फिर, मेरे ख्याल से तो नहीं है, है, है ना, एक और है ना, बताऊं कौन सा, कोई और बताएगा कि मैं बताऊं, देखूं किसको आ रहा है, अच्छा इसके बाद किसका लेक्चर है, नंदिनी मैम का 4 बजे का है। तो फिर मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, ये सम खत्म करेंगे फिर ही हम क्लोज करेंगे, ठीक है, यस चलो, मैम। हाँ जी, अब प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाली पॉइंट पढ़ो, भी वाली पॉइंट पढ़ो, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ, प्रोवाइड मतलब प्रोविजन, एनीवेज ये तो प्रोविजन में भी आ सकता है, और अदर करंट लायबिलिटी में भी दिखाओगे तो भी रॉन्ग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का, बट प्रोविजन लिखा नहीं है ना मैम, तो प्रोविजन में डालेंगे। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रोविजन ही होता है बेटा, मतलब ओके। पहले से प्रोविजन करके रखो 6 महीने का, प्रोवाइड तो मतलब वही हो गया ना बेटा, ठीक है, तो प्रोविजंस में दिखाएंगे तो भी चलेगा, करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे तो भी चलेगा, दोनों राइट है, ठीक है, अब जो आप बोलो, प्रोविजंस में दिखाना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, हाँ मैम। शॉर्ट टर्म ही है ना, ये प्रोविजन 6 मंथ्स मतलब शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट तो हाँ, टर्म। हाँ तो मतलब अभी हम अदर करंट लायबिलिटीज में क्या लिख रहे हैं, इनर कॉलम में 3,000, 3,000। यस, और ब्रैकेट चाहिए तो बना लो 1,800 प्लस 1,200 आउटस्टैंडिंग, ये आपके समझने के लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, सन, अब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस तक हो गया, अब सीक्वेंस में जा रहे हैं, सनरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ जाएगा,
ये एक्सपेंसेस हैं तो ज़रूर ये पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में एक्सपेंसेस में जाएगा, एक्सपेंसेस में कहाँ जाएगा? अदर नो, एक्सपेंसेस, नो फाइनेंस कॉस्ट तो नहीं है ये। अदर एक्सपेंसेस मैम। वेरी गुड, अदर एक्सपेंसेस। अब ढूंढो और कोई अदर एक्सपेंसेस भी हैं क्या, कि सिर्फ एक ही है? सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और क्या है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज बिल्कुल उसके इनवर्ड, नीचे, कैरेज इनवर्ड। और क्या है? ऑडिट फीस। क्या हुआ है तुम लोग को, फटाफट आंसर दो। ऑडिट प्रिलिमिनरी फीस, एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेरी गुड। और क्या है? उस पे एडजस्टमेंट है। हाँ मुझे पता है उस पे एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। somebody said एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। और ये 4 आइटम्स हो गए, और यहाँ पे भी देख लो एक बार। ठीक है, और कोई नहीं है? नहीं। नहीं तो आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर बोलो कौन सा बनाना पड़ेगा। 6। हाँ तो बनाइए वर्किंग नोट नंबर 6। हेडिंग लिखिए अदर एक्सपेंसेस, हेडिंग लिखिए अदर एक्सपेंसेस। पहला पहला आइटम आएगा आपका सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, शॉर्टकट लिखो सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और अमाउंट मुझे 20,000 दिख रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना ये 20,000 पे, तो राइट डाउन एज इफ यू आर राइटिंग इन द आउटर कॉलम। कोई एडजस्टमेंट नहीं है मतलब उसको राइट हैंड साइड में कॉर्नर में लिखना है 20,000। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5,000 सीधा कॉर्नर में, राइट कॉर्नर। कैरेज इनवर्ड 5,000 कॉर्नर, ठीक है, एक्सट्रीम कॉर्नर में लिखते जाओ जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है। और क्या चीज़ है? ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, उसका अमाउंट इफ आई एम ओके विद दैट इज 8,000। एम आई राइट? यस मैम। 8,000 है पक्का, एक बार फिर से चेक कर लो, 8,000 ही है ऑडिट फीस। यस 8,000 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो राइट डाउन इन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द राइट हैंड साइड, ऑडिट फीस 8,000। और क्या चीज़ है बताइए? प्रिलिमिनरी। अब रुक जाओ, प्रिलिमिनरी। रुक जाइए। देखो वैसे तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है ना वो डेबिट साइड दिया हुआ है, देखो हाँ। और एडजस्टमेंट में क्या लिख रहा है वो? राइट ऑफ 1/3 ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वेट फॉर 1 मिनट, हाँ जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। यस सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब आप मुझे देखो, सबसे पहले ये याद रखो, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है ना, ये वाला आइटम जो डेबिट साइड में दिया हुआ है, ये है ना, ये मेरी फिक्टिशियस एसेट होती है, मतलब जिसको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब ये तो जाता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाता है ना ये, एक्चुअली ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट का आइटम है एक्सपेंसेस, लेकिन बैलेंस शीट का आइटम है, इसीलिए तो इसको फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है ना। इसको जमा करके रखते हैं हम लोग संभाल के, धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो अब है ना, सबसे पहली बात, कोई मुझे बताएगा, जब मैं फॉर्मेट सिखा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होंगे ना वो कहाँ जाएंगे, जब मैं फॉर्मेट सिखा रही थी। बैलेंस शीट में ना इसकी एक जगह होती है, चलो मैं हिंट देती हूँ, लाइबिलिटीज में मत देखो, असेट्स में देखो। असेट्स में जाता है ये, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं सबसे पहले तो। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। हाँ तो अब आप मुझे बताइए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ जाता है एसेट्स में? कौन सी ऐसी सब हेडिंग है, और हेडिंग है कहाँ जाता है ये? अदर नॉन करंट असेट्स। वेरी गुड, वेरी गुड, एट वन गो, वेरी नाइस। इट इज नॉन करंट। पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि बहुत सालों से हम इसको रखते हैं संभाल के। क्यों संभाल के रखते हैं? क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कंपनी की शुरुआत में ये खर्चे होते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है
तो उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करती है, पूरा एक साथ राइट ऑफ नहीं कर सकती है कंपनी इसको, कंपल्सरीली इसको थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ता है, 1/3, 20%, 25%, ठीक है, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ता है। तो तब तक तो संभाल के रखना पड़ेगा ना, सालों सालों इसको रखा जाता है, तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म होता है। सबसे पहले तो ये आइडिया क्लियर हो गई, ये लॉन्ग टर्म होता है, मतलब ये नॉन करंट में जाएगा असेट्स में, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉन करंट में जाएगा तो ये फिक्टिशियस एसेट्स है, मतलब ये जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट्स के लिए हमने और कोई सब हेडिंग तो रखी नहीं हुई है, तो अदर में जाएगा, ठीक है। तो अब है ना, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, अब जो आपने वर्किंग नोट नंबर कौन सा बनाया, 6 बनाया ना शायद, उसको है ना आधे में छोड़ो, क्योंकि प्रिलिमिनरी को कितना राइट ऑफ करना है पता नहीं है, अभी करेंगे तो पता चलेगा ना। अभी प्रिलिमिनरी किसका आइटम है, अदर नॉन करंट एसेट्स, हाँ अदर नॉन करंट जो भी आपने लिखा है एसेट्स इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है। तो आपने पहले उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, मतलब ये आधे में छोड़ना पड़ेगा। आधे में मतलब आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखा है, अब उसको क्या करेंगे, 3-4 लाइंस छोड़ दो, लिटरली 3 to 4 लाइंस छोड़ दो, अ गुड 4 लाइंस, ठीक है। अब 4 लाइंस के बाद नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 7 बनाओ, जो भी मतलब आपका नंबर था, 7 था तो 7, 6 था तो 6 बनाओ, उसकी हेडिंग लिखो अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, उसको अंडरलाइन करो। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही आइटम है प्रिलिमिनरी जैसा, फिक्टिशियस वाला एक ही आइटम है, तो लिखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसका अमाउंट मुझे दिख रहा है नीचे से 4th नंबर, मतलब नीचे से 4th मतलब 6000 दिख रहा है मुझे, 6,000. 6,000. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम गोइंग समवेयर रॉन्ग। You are right, ma'am. हाँ जी, तो 6000 हमारा करेक्ट है, वो लिखेंगे हम वर्किंग नोट में 6000 प्रिलिमिनरी के कॉर्नर में, मतलब ऑफकोर्स एडजस्टमेंट है तो आप उसको मिडिल में लिखिए थोड़ा। 6000 में से लेस करेंगे, याद रखो राइट ऑफ मतलब लेस करना पड़ता है, क्योंकि उतना चला गया, राइट ऑफ मतलब उतना हमने राइट ऑफ कर दिया, जैसे डेप्रिसिएशन कैसे माइनस करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में से, टेंजिबल में से, वैसे प्रिलिमिनरी को राइट ऑफ करते हैं, माइनस करते हैं राइट ऑफ करते समय। अब देखो कितना राइट ऑफ करना है, 1/3. 1/3 मतलब इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 1/3 Yes. क्या होता है, Divide 1 by. डिवाइड बाई 3 होता है ना। Yes. तो Yes. इन शॉर्ट 6000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 मतलब 6000 डिवाइड बाई 3 करोगे ना। 2,000. 2,000. हाँ, तो आप एक काम करो, सुनो मेरी बात, प्रिलिमिनरी 2,000. एक्सपेंसेस 6000 लिखा है सबने, उसके नीचे आ जाओ, प्रिलिमिनरी के नीचे लिखो लेस रिटर्न ऑफ, लेस रिटर्न ऑफ, अभी ब्रैकेट बनाओ नीचे, 6000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 6000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, आंसर 2000, 6000 के नीचे पर ब्रैकेट में, 6000 में से 2000 माइनस करेंगे मतलब ब्रैकेट में, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है। 4,000. अब देखो 4,000. बैलेंस शीट में आपको 4000 दिखाना है, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चे कितने हैं, 4000, 6 में से 2 तो राइट ऑफ हो गया, बाकी बचा कितना, 4, तो आपको 4. बैलेंस शीट में 4000 लेके जाना है, लेके जाओ अभी का अभी लेके जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, एसेट्स में आ जाइए, नॉन करंट एसेट्स में आ जाइए, उसमें लास्ट लास्ट आपने लिखा होगा अदर नॉन करंट एसेट्स, उसके इनर कॉलम में लिखिए 4000। अब ये 4 कहाँ से आया, दिखाइए वर्किंग नोट नंबर जो भी है आपका। इतना सबको क्लियर है, हाँ ना, कुछ Yes, ma'am. बोलिए तो मैं Yes, समझूंगी। ma'am. ओके, Yes, Perfectly. ma'am. हाँ जी, अब क्या करेंगे सुनिए बड़े ध्यान से, 6000 में से 2000 लेस किया था, तो जो 2000 है ना वो एडजस्टमेंट वाला आइटम है। अब 4000 का सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखाना है, 6000 का इफेक्ट नहीं दिखाना है, 1/3, 1/3 एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट दिखाना है, तो 1/3 मतलब 2000, 6000 का 1/3 मतलब 2000, तो 2000 का सेकेंड इफेक्ट दिखाना है। हाँ, तो आप मुझे बताइए 2000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक बैलेंस शीट में हो Other गया, तो अब पीएनएल में other जाएगा। expenses. हाँ, अब जो आपने ऊपर वाला एडजस्टमेंट आधे में छोड़ा था ना, वर्किंग नोट,
अदर एक्सपेंसेस का वर्किंग नोट अभी अभी हमने आधे में छोड़ा था। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? 6। 6। हाँ, वो हमने आधे में छोड़ा था। उसमें लिखा है आपने प्रिलिमिनरी। अब लिख दो सीधा प्रिलिमिनरी 2000 आउटर कॉलम की तरफ, सीधा प्रिलिमिनरी को अब नहीं दिखाना 6 - 2 4। 4 का सेकेंड इफेक्ट नहीं दिखाना है, प्लीज नोट दिस डाउन। एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का अमाउंट क्या है? 2000। तो 2000 का प्रिलिमिनरी सेकेंड इफेक्ट में जाएगा अदर एक्सपेंसेस के नाम पे। यस मैम। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अदर एक्सपेंसेस हो गए और कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं है, सिर्फ यही बचा हुआ था एक जो हमने लिख दिया। अब टोटल करिए अदर एक्सपेंसेस का। 35,000। 35,000। 35,000। 35,000 को लेके आइए पीएनएल में, इनर कॉलम में अदर एक्सपेंसेस। पीएनएल के अदर एक्सपेंसेस में इनर कॉलम में लिखिए 35,000। ठीक है, हो गया ये भी। अब हम कहाँ थे? सीक्वेंस में चल रहे हैं। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। अब आ जाइए 12% बैंक लोन। बैंक 50,000 का बैंक लोन है, तो ये कौन सा आइटम है? बैंक लोन कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में कि प्रॉफिट एंड लॉस में? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लाइबिलिटीज। ये नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है? लॉन्ग टर्म। हाँ, कुछ नहीं बोला ना तो लॉन्ग टर्म लॉन्ग होता है लोन। लोन मतलब लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग कुछ टर्म ना बोले तो। बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, जाओ नॉन करंट लाइबिलिटीज में, उसमें पहला पहला लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। रुको एक यस मिनट यस मैम। जाओ। मैम। हाँ, उसमें ही लिखना है आपको, पर पहले ये देखना है कि और भी कोई है जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा, जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। नहीं है। नहीं है नहीं है। पक्का? नहीं। हाँ जी। एडजस्टमेंट है। किधर है एडजस्टमेंट बेटा? प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बेटा वो फॉर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और बैंक लोन बैंक है, लोन। वो नेक्स्ट आइटम है, अभी आएगा वो। ये बैंक लोन है, वो एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे है। दोनों अलग चीजें हैं। एक लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया, और एक उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आप भर रहे हो, दोनों अलग चीजें हैं बेटा। रुको आप, बैंक लोन उस पर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और एक ही आइटम है। ठीक है, तो सीधा डाल सकते हैं, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। यस। जाइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, उसमें लिखिए 50,000 इनर कॉलम। 50,000 इनर कॉलम हो गया। अब आइए इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट में दिख रहा है, मतलब ये एक्सपेंस जरूर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन मतलब मैं इंटरेस्ट भर रही हूँ, मतलब मेरा खर्चा है। खर्चा है मतलब पीएनएल का यस। आइटम है ये। देखो कैसे यस। समझना है, ये पीएनएल का आइटम है। अच्छा, पीएनएल में ये इनकम तो है नहीं, ये तो एक्सपेंस है, मतलब ये जाएगा एक्सपेंसेस में। अच्छा, एक्सपेंसेस में कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कुछ समझ आ रही है कहाँ जाएगा? बहुत सारी हेडिंग्स हैं आपके पास, बताइए। जोर से बोलो बेटा, आवाज फाइनेंस नहीं आ कॉस्ट। रही। हाँ, वेरी फाइनेंस गुड। फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस। पहले पहले किसने आंसर दिया? छोटी सी नन्ही मुन्नी मैंने। आवाज में। नहीं, तूने आंसर नहीं मैम दिया है। फर्स्ट चैट में लिखा था। चैट तो मुझे दिख ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। सिर्फ जो निधि ने लिखा है बस उसका लास्ट एडजस्टमेंट दिख रहा हाँ, है। चैट सुरभि पे ने दिया पहले था नहीं आएगा। मैम। देखा मैंने। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस सुरभि, सौरभ, वेरी गुड। और बाकी जिन्होंने आंसर दिया ओरली वो भी बहुत अच्छी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जाता है फाइनेंस कॉस्ट में। अब पहले ढूंढो फाइनेंस कॉस्ट, एक ही है, दो है, तीन है, कितनी है? देखो एनीवेज वर्किंग नोट तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो आइटम है ना, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से फाइनेंस चार्जेस में एक ही अमाउंट है, एक ही आइटम है। ठीक है, चलो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 8। लिखो ऊपर से फाइनेंस कॉस्ट, हेडिंग फाइनेंस कॉस्ट, उसमें लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। interest on bank loan and it is 3,000। 3,000। अब सुनो बड़े ध्यान से, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 months। अब 6 months का प्रोवाइड करना है, सुनो ध्यान से देखो। बैंक लोन को 6 months के इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन करना है। तो अब इंटरेस्ट निकालू कैसे मैं? कोई मुझे बताएगा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं?
देखो बैंक लोन कितने का है? 50,000। 3,000. अच्छा, उस पर इंटरेस्ट कितना है? पता नहीं मैम, इंटरेस्ट का अमाउंट पता है 3,000। 12%। यस, वेरी गुड, 12%। बैंक का देखो ऐसे दिया है 12% बैंक लोन, तो 12% क्या है? इंटरेस्ट का रेट ही तो है। तो 50,000 का 12% पूरे साल का, तो 6 मंथ्स का कितना? 50,000 इंटू 12% कितना होता है? 12 5 6 होता है, 6। 6,000 पूरे मंथ का है। पूरे साल का है, मंथ का नहीं बेटा, पूरे ईयर का। तो 6,000। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, 50,000 पे 12% लगाएंगे तो कितना आता है? 6,000 पूरे साल का। लेकिन मुझे 6 महीने का 6,000. चाहिए। 6,000. पूरे पूरे साल का 3,000। 6,000 है। Upon 12. हाँ, 6,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो कितना आएगा? 3,000। 3,000. हाँ, 3,000. बस यही मुझे समझाना था। इतना प्रोविजन करना है, मतलब ऐड करना है। प्रोविजन ऐड करते हैं ना हम कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 पे करना है, उसके साथ साथ प्लस 3,000 और भी 6 महीने का प्रोविजन करके रखना है, तो टोटल ही तो करेंगे हम, प्लस ही तो करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे लिखना है इसको मैं बताती हूँ। वर्किंग नोट नंबर 8 आपने लिखा है फाइनेंस कॉस्ट, उसको अंडरलाइन करो, नीचे लिखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000, उसके नीचे लिखो एड प्रोविजन ऑफ 6 मंथ्स, एड प्रोविजन फॉर 6 मंथ्स, प्रोविजन फॉर 6 मंथ्स, ब्रैकेट में ब्रैकेट बनाओ पहले। कैसे निकालेंगे 3,000 वो देखो, पहले ब्रैकेट में लिखो 50,000 50 इंटू 12% इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 6 मंथ्स का चाहिए ना आपको, तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा ना। अगर 3 मंथ्स का चाहिए तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 2 मंथ्स का चाहिए तो इंटू 2 डिवाइड बाई 12। तो अब आंसर क्या आ रहा है? 50,000 इंटू 12% इंटू 6 3,000. डिवाइड बाई 12। 3,000। 3,000. उसको हाँ, अभी 3,000 के नीचे लिखो 3,000, दोनों का आंसर सेम है। 3 प्लस 3 कितना होता है? 6,000. 6,000। हो गया 6,000। तो अब आ जाओ, ये फाइनल आंसर कहाँ लिखेंगे? फाइनेंस कॉस्ट के इनर कॉलम में। पीएनएल का एक्सपेंसेस का फाइनेंस कॉस्ट के इनर कॉलम में लिखेंगे 6,000। रुक जाओ, अब 6,000 तो लिख दिया, लेकिन जो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है 3,000, उसका सेकेंड इफेक्ट भी तो आएगा। ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट कहाँ Short term जाएगा? provision. मैं फिर से बोल रही Short हूँ। term provision. हाँ, मैं फिर से बता रही हूँ, ट्रायल बैलेंस का जो 3,000 है उसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आता है। जो टोटल 6,000 है उसका भी सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। जो एडजस्टमेंट वाला 3,000 था ना, उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। ठीक है, हाँ, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बैलेंस शीट में जाएगा, करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। पर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में टैक्स का प्रोविजन भी है, एडजस्टमेंट नंबर 5, तो हमको बनाकर आधे में छोड़ना पड़ेगा। लिखो वर्किंग नोट नंबर 9, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग लिखो। वर्किंग नोट नंबर 9, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अंडरलाइन इट, राइट डाउन provision for interest on bank loan, ब्रैकेट में 6 months, Provision provision on for interest on bank loan, provision for interest on bank loan, ब्रैकेट में 6 months, और राइट हैंड साइड कॉर्नर में लिखो 3,000 रुपीज। 3,000, हाँ, जो एडजस्टमेंट वाला अमाउंट है ना 3,000, वो हो गया सेकेंड पे। आधे में छोड़ना पड़ेगा ये वर्किंग नोट को, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे टैक्स का भी तो जाएगा प्रोविजन। आगे बढ़े, चलो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, ऑफिस सैलरीज हो गया था, ऑडिट फीस हो गया था, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन हो गया था, प्रिलिमिनरी हो गया। अब आ जाइए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे। सी इट इज शोइंग मी इन माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? स्क्रीन Yes, विजिबल है? ma'am. ऑडिबल हूँ?
ओके Yes, ma'am. हाँ ठीक है, कहीं नहीं सुनाई दे तो बोलना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अब ये मुझे दिख रहा है ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। तो वर्किंग, सुनो, अब आपने वर्किंग नोट नंबर 9 बनाया है, उसके लिए 3-4 लाइन छोड़ देना आधे में। ये वर्किंग नोट आधे में है प्रोविजंस का, छोड़ दो 3-4 लाइन। वर्किंग नोट नंबर 10 बनाओ, लिखो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स अंडरलाइन करो। सबसे पहले लिखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। कोई एडजस्टमेंट है नहीं है चेक करो। नहीं, तो सीधा आउट एज इफ आप आउटर कॉलम में लिख रहे हो वैसे लिखो 1,64,000 मैम फ्री। आवाज कट रही है बहुत आपकी। हाँ जी बेटा, वो मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन का अनस्टेबल दिखा रहा है। अब आवाज आ रही है? अब ठीक है? हेलो, हाँ मैम। अब ठीक है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। अतीफा बेटा, अब बाकी सबको तो आ रही है आवाज। अभी काजल, आ रही है आवाज? जल्दी बोलो। हाँ मैम। अच्छा हाँ मैम। ठीक, ठीक है चलो आगे बढ़े। अतीफा बेटा आई अब? ठीक है, ठीक, ओके। चलो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1,64,000 लिखेंगे आउटर कॉलम की तरफ, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हम खड़े हैं वर्किंग नोट नंबर 10 में। अतीफा बेटा ब्रेक हो रहा है आवाज। आप सबका भी ऐसे ही सुनाई दे रहा है क्या, ब्रेक होके? हाँ नहीं ब्रेक तो हो मैम। रहा है। अ, फिर क्या करूं? अब मैं अपने मैम मीटिंग हॉटस्पॉट, बंद करके फिर से ऑन करो। अरे नजर मत लगाओ, मीटिंग को 40 मिनट से एक्सीड हो गया है। आज मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है, कितनी अच्छी बात है। हाँ अब मैम, नोटिफिकेशन आया था। आया था? नोटिफिकेशन आया था। क्या आया था? नया आईडी बनाया ना इसलिए। अच्छा, ओके। तो एंजॉय आया क्या आया था? था। एंजॉय? एंजॉय अनलिमिटेड होगा। क्या बात है, वाओ वेरी गुड। फर्स्ट मीटिंग पे लिमिट नहीं होता। अच्छा ऐसा, तो हमेशा हम न्यू आईडी बनाते रहे। चलो एनीवे, ठीक है चलो। अब आ रही है आवाज तो आगे बढ़ो। Yes, ma'am. हाँ हाँ मैम। मैम। अच्छा ठीक, हम है ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, तो आपको आवाज आ रही है। और मैं पढ़ाई कराने लग रही हूँ तो आपको आवाज नहीं आ रही है ना? चलो। मैम लेकिन ब्रेक हो रही है। सही में, यस लेकिन मैम मैम ब्रेक। ऐसे ही हो रहा है। अच्छा फिर ब्रेक हो रहा है? अब शुरू करने जा रही हो तो ब्रेक हो रहा है? हाँ, बड़े स्मार्ट हो तुसी। यस मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। बच्चा अभी मैं क्या करूं बताओ, मैं ना मोबाइल में मैम सच हॉटस्पॉट। में ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, सुनो। वर्किंग नोट नंबर 10 सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस ठीक है, हाँ। मैम। हाँ जी। वर्किंग नोट नंबर 10, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स बनाना है। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। आवाज ब्रेक हो रही है मैम। बच्चा मैं क्या करूं फिर, रुको। आई विल मेक इट ओके। ये ना मैं आपके लिए बना लेती हूँ, रुको। Wait, I will show you in the chat box. I mean in the Word document. Screen visible है? Yes, ma'am. यस मैम। Tangible fixed asset, ठीक है? साइज बढ़ा देती हूँ। Now what you have to do? Freehold premises. You have to write in the right hand side corner because you don't have any adjustment. You don't have any adjustment.
Because there is no adjustment, 1,64,000 will be written in the outer column. This is 1. Okay. Now second will be plant and machinery. Plant and machinery 1,28,000, but we have adjustment. What is the adjustment? 15%. Go on writing with me. Go on writing with me, okay? Depreciation. Depreciation 15%. Now you tell me what is the amount of PML, plant and machinery? 1,28,000. And what is 15% depreciation? Plant and machinery has a 19,200. has an amount of 1,28,000. So you have to write as if you are writing in the inner column. So you will deduct the depreciation. What is the depreciation amount? It is 15%. Wait. Less depreciation, bracket 15%. What is the amount of 15%? 19,200. Okay, it has to be applied on 1,28,000. So it will be 19,200, but in the bracket. I hope you are writing with me. Don't stop yourself. Now 1,28,000 Yes, minus ma'am. 19,200. So what will be the final amount? 1,08,800. Please again, 1 lakh. Is it correct? 1,08,800. Very One. good. Very good. Yes. Okay, Yes. very good. अच्छा वो लाइन के साथ ही आ रहे हैं. You have to select it. Wait. Okay. Now we have next. Next is our third number. Furniture. Furniture. Yes, Furniture. we have furniture. Furniture. So what is the amount of furniture and do we have adjustment? Furniture के ऊपर Yeah, Yes, the adjustment? ma'am. amount is 10. Depreciation. 5,000. What is the amount of furniture? Depreciation is 5,000. Only 5,000. 5,000? Yes. Yes, ma'am. Okay. So less depreciation would be 500. 10%. 500. 10 percentage, which is around 500. It is 10 percentage, and it should be written in the bracket 500. So what is the final figure? 5,000 minus 500. 4,500. 4,500. 4,500. 4,500. ठीक है. और फर्नीचर के बाद क्या है? Loose tools. So we have another tangible fixed asset. Loose tools. And what is the amount of loose tools? 12,000 in the trial balance. Okay. Less depreciation. We don't know depreciation, but we know what is the value of the loose tools on the closing date. Look at the first adjustment. First adjustment A. On 31st March, loose tools stood at rupees, valued at rupees 10,000. So we know the value, the closing value of the loose tools. The closing value of the loose tools is 10,000. Therefore, it is understood that 2,000 will be my 2,000 depreciation. depreciation. 2,000 will be my depreciation. Therefore, the written down value, which is already given, can be copied down here. Okay. Any other tangible fixed assets apart from these four? If not, then we will add all these figures.
Now we have to add all these four figures and you get me the total. 2,87,300. 1 minute. Yes, please again. 2,87,000. 2,87,300. 2,87,300. 300. So this is my final total tangible fixed assets. Is it clear? So now what you have to do is this 2,87,300 has to be brought to the uh, inner column of tangible fixed assets in the balance sheet. Come to the balance sheet. Come to non-current assets. Under non-current assets, you have already written fixed assets. Under fixed assets, you have already written tangible fixed assets. Now there you have to write 2,87,300. Is it very clear? Yes, ma'am. Okay. Now we have three depreciations. Uh, Depreciation. okay. So what is the total of all? Can you all tell me what is the total depreciation? 21,700. 21,700. Sorry, please repeat again. 21,700. 21,700. Yes, see, what all figures has to be added? See, look here. This 19,000. Okay. This 5,000. And this 2,000. All these figures are to be added because these figures are given in the adjustments. And the one which is given in the adjustment has two effects. Therefore, depreciation का पहला इफेक्ट क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट में से लेस हो गया. दूसरा इफेक्ट क्या होगा? पीएनएल के एक्सपेंसेस में जाएगा. तो जाओ पीएनएल के एक्सपेंसेस में. Depreciation and वेरी गुड. एक्सपेंसेस में कहाँ? डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन. Depreciation amortization. वेरी expense. गुड. सो 19,000 प्लस 500 प्लस 2,000 21,700 आप वहां दिखाएंगे. 21,700. इतना समझा सबको? Done, ma'am. हाँ. आगे बढ़े. Yes. Okay. Okay, let me come back to the question. So where we were? Audit fees, director remuneration, preliminary हो गया. Freehold, plant, machinery, furniture, loose tools हो गए. Debtors and creditors. Debtors and creditors के साथ bills payables and bills receivables भी होता है, पर इस सब में नहीं है. तो हम लोग डायरेक्टली बिना प्लस किए डाल सकते हैं. जाओ बैलेंस शीट के असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स. ट्रेड रिसीवेबल्स में करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स का अमाउंट है 1 लाख. इनर कॉलम में लिखेंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स के इनर कॉलम में 1 लाख. अच्छा, अब जाओ करंट लायबिलिटीज में ऊपर बैलेंस शीट पे. बैलेंस शीट में ऊपर आपके पास करंट लायबिलिटीज है ना, उसमें आपने Trade लिखा होगा payable. ट्रेड पेएबल्स. उसके इनर कॉलम में लिखिए 62,000. 62,000. ओके, हो गया ये इनर कॉलम. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहाँ जाता है? बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में. Cash and cash equivalent. वेरी गुड. करंट एसेट्स में एक हेडिंग दी हुई है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. यू एड बोथ ऑफ देम. 38,000 plus 96,000. What is the total of 1,34,000. 1,34,000. 4,000. 1,34,000 inner column. Balance sheet, current assets, cash and cash equivalents. In the inner column, you have to write 1,34,000. Advance payment of tax. It is prepaid expenditure. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा कि कहाँ जाएगा? Balance sheet. वेरी Balance sheet. वेरी गुड. एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स. आपने खर्चों को पहले से ही पे कर लिया, तो ये मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंडिचर के जैसा ही हो गया. प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह हो गया. तो 84,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस. कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो लाइबिलिटी होती है.
बट इफ इट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में पेमेंट कर लिया, तो ये मेरी एसेट होती है, ठीक है। Yes. एसेट्स में शॉर्ट टर्म एसेट्स, क्योंकि ये टैक्स है, ये टैक्स हम हर बार, हर महीने, हर 6 महीने पे करते रहते हैं। सो दिस इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एसेट्स मतलब करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड लोन्स एंड एडवांस। एडवांसेस। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वर्ड है ना एडवांसेस उधर, तो इससे मैच हो जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाइए, इनर कॉलम में लिखिए 84,000, नो वर्किंग नोट, नथिंग, simply writing in the inner column 84,000. Other incomes, ये कहाँ जाएगा? Profit बैलेंस and शीट loss. में कि Profit पीएनएल? and loss. Profit and पीएनएल। loss. Profit and loss. पीएनएल में आपके पास दो इनकम्स है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक अदर Other इनकम्स। income. So in the other incomes you have to write in the inner column 38,000. 38,000. इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी हो गया था। अब आ जाइए एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ रह तो नहीं है। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पहले तो हमने इसको Okay. ऐड किया था प्रॉफिट एंड लॉस के एम्प्लॉय बेनिफिट में, और दूसरा हमने अदर करंट लायबिलिटीज में इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट्स नहीं दिखाए हैं, हम भूल गए हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट क्या होता है? ओपनिंग में से लेस करने का, वो कर चुके हैं। लेकिन सेकेंड इफेक्ट क्या होता है इसका? Inventory. Closing. बैलेंस शीट के करंट Inventories. एसेट्स में इन्वेंट्रीज, जाइए बैलेंस शीट में करंट एसेट्स निकालिए, उसमें इन्वेंट्रीज है आपके पास, हेडिंग उधर लिखो 1,60,000 इनर कॉलम। हो गया सेकेंड इफेक्ट। देखो बैलेंस एक बार रिवाइज कर लेने का, सब हो गया है कि नहीं। देखो अब पता चला ना क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट नहीं हुआ है। चलो लूज टूल्स, लूज टूल्स का डेप्रिसिएशन हो गया था, माइनस किया था हमने 2,000 और 10,000 दिखाया था आउटर कॉलम में, और 2,000 का सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन में भी एड ऑन किया था। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ्स, पहले तो ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के नाम पे हमने ऐड किया था। दूसरा इफेक्ट हमने प्रोविजंस में दिखा के रखा है, आधे में छोड़ा है वर्किंग नोट को, अगर आपको याद है तो। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर दोनों लेस भी किए और डेप्रिसिएशन में एड ऑन भी किए प्रॉफिट एंड लॉस में। 1/3 ऑफ प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी पहले बैलेंस शीट में राइट ऑफ जो किया उसको लेस कर दिया। दूसरा इफेक्ट हमने इसका नॉन करंट सॉरी, इसका सेकेंड इफेक्ट हमने पीएनएल के अदर एक्सपेंसेस में रिटर्न ऑफ वाला पार्ट दिखाए, मतलब दोनों इफेक्ट्स हो चुके हैं। मेक अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 35% ऑफ बुक प्रॉफिट, ये रहा हो गया। तो अब सबसे पहले बाकी सब तो हो गया, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पीएनएल क्लोज करना पड़ेगा। Total P&L. हाँ, पीएनएल क्लोज करेंगे। तो मुझे बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम्स का टोटल कितना है? 11,95,000। दिव्या हैज आंसर्ड मी, वेरी नाइस। अ क्विक आंसर 11,95,000. Rest all students have to assure that this answer is right. Is it right? Yes, ma'am. Okay, write it in the outer column of total. You have written already, there is a total word under other expenses. So total के outer column में लिखो 11,95,000. Don't put any line, don't draw any line above or below, don't do it. Simply 1,95,000. अब आपके पास एक्सपेंसेस में जो जो नहीं है पहले उसको नील करो। एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं है, नील कर दो। अब मुझे सारे एक्सपेंसेस का टोटल बताइए, ओनली एक्सपेंसेस। हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से लेकर अदर एक्सपेंसेस। इज इट 9,43,700? Yes, ma'am. Yes, Neha, Nidhi, Divya have Yes, ma'am. answered. Yes, ma'am. 9,43,700. ओके, अब आपके पास अदर एक्सपेंसेस के नीचे टोटल वर्ड लिखा हुआ है, वो टोटल के आउटर कॉलम में लिखेंगे 9,43,700 इनटू ब्रैकेट। पुट दिस अमाउंट इनटू ब्रैकेट, पुट दिस फिगर इन द ब्रैकेट। अब 11,95,000 में से 9,43,700 को लेस कीजिए। So Divya has written 2,51,300. Ramesh has Yes, confirmed. Nidhi Yes, has ma'am. also given me the answer. Okay. Okay, very good. Okay. 2,51,300 is my net profit before exceptional, extraordinary and tax. So what is exceptional? कुछ नहीं है, nil.
So net profit before extraordinary and tax will be same, 2,51,300. What is extraordinary? Nothing, nil. Keep on writing nil. You will get the answer 2,51,300 same. और उसका नाम क्या लिखा होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हाँ, नील को आप है ना छोटा बहुत डैश लगा सकते हैं. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आप आ गए, 2,51,300 मिल गया. अब बिफोर टैक्स मिल गया तो टैक्स लगा सकते हैं. अब आपने लिखा है नीचे टैक्स लेस टैक्स, ब्रैकेट में लिखो 35% ऑन 2,51,300. 35% on 2,51,300. So you tell me what is the amount of tax? 87,955. 87,955. Okay, very good. Outer column bracket. टैक्स के आउटर कॉलम में ब्रैकेट में डालिए 87,955. उसको माइनस कीजिए 2,51,300 में से 87,955 माइनस कीजिए. So what is my net profit after tax? 1,63,345. 1,63,345. एप्रोप्रिएशंस हैं? चलो लिखो लेस एप्रोप्रिएशंस है. कोई एप्रोप्रिएशंस? प्रपोज डिविडेंड कुछ ऐसा है? ट्रांसफर टू जीआर प्रपोज डिविडेंड नहीं है. नील कर दो एप्रोप्रिएशंस. तो आपका फाइनल आंसर उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और वो सेम 1,63,345. 1,63,345. अच्छा, ये 1,63,345 किसका आइटम है? ये कहाँ जाएगा? Reserves and surplus. वेरी गुड. तो मुझे बताइए रिजर्व्स एंड सरप्लस का और कोई आइटम था कि सिर्फ ये एक ही है? एक ही है. तो ये सीधा हम डाल सकते हैं, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वैसे हम वर्किंग नोट बनाते थे क्योंकि जीआर होता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता था, बट अभी ये एक ही है ना. तो जाइए बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर फंड्स, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस के ब्रैकेट में लिखिए नेट प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, दोनों में से कुछ भी लिखो. हाँ, डायरेक्ट लिखेंगे. ब्रैकेट में लिखो रिटेन्ड अर्निंग्स, इनर कॉलम 1,63,345. इनर कॉलम 1,63,345. अब रुको, खत्म नहीं हुआ. बैलेंस शीट टैली नहीं होगा. बैलेंस शीट टैली नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? कोई बताएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस तो हो गया. वो वर्किंग नोट वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एक शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का वर्किंग नोट आते नहीं है. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? 9. हाँ, तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 9 में. आपने उधर ऑलरेडी लिखा है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने ऑलरेडी लिखा है. उसमें नीचे ऐड करो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 लिखा है ना, उसके नीचे ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्स. अब जो टैक्स का अमाउंट निकाला था ना वो बताइए मुझे. टैक्स का अमाउंट बताना, लेस करके जो आंसर नेट प्रॉफिट आया था वो नहीं, टैक्स का अमाउंट 87,955. वेरी गुड रिचा. 87,955. अब 3,000 और 87,955 को ऐड कीजिए. 87,955 में 3,000 को ऐड कीजिए. शॉर्ट टर्म प्रोविजन का टोटल कितना आ रहा है? 90,955. 90,955. श्योर? Yes. ठीक है. ओके. सुहानी, निकिता, शिवानी, everybody is answering. Very good. Very nice. Ravina. Good, good. Keep it up. 90,955. This is my short-term provisions का total. Bring it to the balance sheet. Assets में आ जाओ, sorry, liabilities में आ जाओ. Current liabilities. Current liabilities में आपके पास heading है short-term provisions. उसमें लिखिए 90,955. और अब देखिए बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Let me know if the balance sheet gets tallied.
I'm giving you 2 minutes. Everybody. Yes, so what is the tally figure? 7,69,300. Everybody Yes. has got the answer? See, Yes, I ma'am. have Yes, so Yeah. many ma'am. of you answering in the chat box, but then so many of students are not answering in the chat box, so I will not be able to understand. So you can reply me. Okay, Rohit is also giving me a reply. सुहानी, निकिता, नेहा सारे तो रिप्लाई कर रहे हैं. वेरी गुड. चलो बढ़िया, आपका सबका टैली हो गया. 7,69,300 आपका टैली फिगर है. ठीक है, मतलब हमारा सम करेक्ट है. ओके, अब होमवर्क कौन सा है वो भी नोट डाउन कर लो. ये 4.29 यस वाला मैम. सम हम कर चुके हैं. वेट. मैम कर चुकी हूँ. हाँ जी बेटा, रुको एक मिनट. ये किया है क्या? ये सम किया नहीं, है? नहीं नहीं मैम. हाँ, मैम. तो ये होमवर्क ले लो. देखो इसमें एडजस्टमेंट्स क्या क्या है. क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट है. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग रेंट, डायरेक्टर प्रपोज्ड डिविडेंड. ये सारी एडजस्टमेंट्स हम पिछले सारे सम्स में कर चुके हैं. मतलब नथिंग इज न्यू फॉर यू. ओके, अब ये वाला, एक तो ये वाला सम होमवर्क है. 8th वाला सम नोट डाउन कर लो. एम लिमिटेड. ठीक है, एम लिमिटेड, ये वाला सम होमवर्क है. और ये वाला ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड 14th सम. इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल, शेयर इशू एक्सपेंस. सुनो, शेयर इशू एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, वो भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं. जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही शेयर इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं. उन्होंने बोला राइट ऑफ करो 10%, तो नॉन करंट एसेट्स में जाएंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस लिखेंगे, उसमें से 10% माइनस करके जो अमाउंट आता है वो अदर नॉन करंट एसेट्स में जाएगा. और जो 10% वाला अमाउंट होगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अदर एक्सपेंसेस में. ठीक है, सेम जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैसे किया आपने, एग्जैक्टली सेम. ओके, और दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है, ये तो आपको पता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स. देखो सिंपल है ये बहुत. पहले तो आप डेटर्स कहाँ लिखते हो? बैलेंस शीट के करंट एसेट्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स. वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट है. तो डेटर्स का जितना भी अमाउंट है उसका 5%, अगर कोई पुराने बैड डेट्स हैं, आपको याद है वो फॉर्मूला, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस ओल्ड यस आरडीडी मैम. माइनस, वो याद है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला अप्लाई करके लिखना है. अगर नहीं आता है तो ये मैं करवाऊंगी आपको, ये एडजस्टमेंट सिर्फ डेटर्स वाली. अगर आता है जिसको तो वो करेगा खुद ही. प्रोविजन 1,80,000 इनकम टैक्स, ऑलरेडी अमाउंट दिया हुआ है 1,80,000 का इनकम टैक्स, ये भी हमने किया है. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमको आता है. फ्रॉम द अबव प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एंड बैलेंस शीट. ठीक है, तो सिर्फ डेटर्स का मुझे ऐसे लग रहा है आपको कुछ डाउट अगर आएगा भी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे. पर पहले आई वांट यू ऑल टू डू दिस ऑन योर ओन. ठीक है, यस मैम. इज दैट ओके? यू ऑल हैव टू ट्राई. वो फॉर्मूला लगाना, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. ये फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर मिल जाएगा जो पीएनएल में जाएगा. लेकिन डेटर्स में से तो आपको 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब न्यू आरडीडी दिया हुआ है. तो ये न्यू आरडीडी हमको डेटर्स में से माइनस करना होता है. ठीक है, और बैड डेट्स भी डेटर्स में से माइनस करने होते हैं. तो वो अभी आप पहले देखना. न्यू बैड डेट्स, हाँ, ओल्ड बैड डेट्स नहीं, न्यू बैड डेट्स. तो आप में से जिसको ये पॉइंट आता है वो करेगा, नहीं तो डाउट में रख देना, मैं करवाऊंगी. पर पहले आपको ट्राई करना है खुद से. ठीक है, चलो. फिर हमारा ना सारा सिलेबस खत्म. मतलब सिलेबस मतलब कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट्स का, जितने भी कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट्स में सम्स थे ना वो हो जाएंगे हमारे. ये 2 ही पेंडिंग थे, ये 2 आपने होमवर्क करना है. सो कल लेक्चर नहीं होगा मेरा, सैटरडे आई है, तो सैटरडे को हम ये डिस्कस करेंगे. तो 2 सम्स हैं आपको सैटरडे तक के लिए. इज इट फाइन? द होल डे यू हैव ऑफ टुडे एंड देन अगेन यू हैव टुमारो. सो यू हैव 2 days to complete your homework. There are 2 sums. Please don't disappoint me saying that we have not done it.
ठीक है, हम लोग पहले डाउट से शुरू करेंगे लेक्चर्स, अपना सैटरडे का लेक्चर, और फिर एफएसएम पे शिफ्ट होंगे. इज दैट फाइन विथ एवरीबॉडी? Okay. Yes, ma'am. ओके 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 फाइन. सो shall I end the lecture now? See, anyways, if you have any other doubt, we will be commencing on Saturday and you can share it with me that time. Okay? So, thank you everybody. Take care. Keep revising, keep studying. And be healthy. Eat healthy. Take care of your mamas. Okay? Yes, ma'am. Hmm. Chalo, bye everybody. Take care. Bye, ma'am. Thank you.